Okay, in further efforts towards study on atmospheric pressure, let us see how we can measure atmospheric pressure. This can be done very easily with the help of a simple barometer. The simple barometer was invented by Evangelista Torricelli. So this is the kind of arrangement that we have. This is a tub and this is filled with mercury. Mercury, we know, is a metal which is liquid at room temperature. Okay? So this is a U-tube that is there, which has been inverted into this tub. Okay? And now what would happen? Due to the pressure exerted by the atmosphere, this atmosphere would exert pressure from all directions on this liquid. ठीक है? As a result, liquid में pressure पड़ेगा और ये यहाँ से इस ट्यूब के अंदर, U-tube के अंदर liquid चला जाएगा. It would start rising in the U-tube. It would not stop till the time the pressure due to this atmosphere, which is the atmospheric pressure, and the pressure now applied in outward direction becomes equal. ठीक है? जब तक ये प्रेशर जो इस मरकरी की वजह से U-tube जो बाहर की तरफ लग रहा है और ये जब तक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये मरकरी राइज करता रहेगा. और हमने देखा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे सी लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि जो हम अपनी हाइट यहाँ पे मेजर करते हैं, जैसे हम पहाड़ों की हाइट या किसी सिटी की हाइट देखते हैं कि ये सिटी जो है सी लेवल से इतनी हाइट पे है, ये हिल स्टेशन इतनी हाइट पे है, वो सी लेवल से मेजर की जाती है. सी लेवल इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट and the density of air at sea level is maximum, hence the pressure is also maximum. ठीक है? तो sea level पे हमने measure किया इसको, हमने देखा कि ये जो liquid rise करता है that is equal to 76 centimeter of mercury. तो mercury क्योंकि हमने लिया है तो mercury 76 centimeter तक rise करता है. ठीक है? अब we know how to calculate pressure. Pressure liquid की वजह से है. This is the formula that we derive. It depends upon height of the liquid. It depends upon the density of the liquid. And it depends upon the gravity at that place. And the values for that, H we have calculated, which is 76 centimeter, to be converted into its SI unit, which is 0.76 meter. Density of mercury, this is the symbol for density, rho, RHO, is 30,000 kilogram per meter cube for mercury. The value of G, the gravity at sea level, is 9.8 meters per second square, standard जो हम लेके चलते हैं. So we do the calculation, multiply them, and we get 1.01 into 10 raised to the power 5 pascals. इतना प्रेशर सी लेवल पे एटमॉस्फेयर की वजह से एक्सर्ट होता है. तो 1.01 को हम 1 ले सकते हैं. 10 raised to the power 5 is 1 lakh. तो 1 lakh पास्कल प्रेशर है एटमॉस्फेयर की वजह से सी लेवल पे. 1 lakh पास्कल को हम 1 atmosphere लिख देते हैं. So atmosphere is a bigger unit than the SI unit of pressure. Okay, so atmosphere is a bigger unit. 1 atmosphere is equal to approximately 1 lakh pascals. And थोड़ा exact idea देना है तो 1.01 into 10 raised to the power 5 pascals. We also studied what may happen due to difference in pressures. जैसे हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है.
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। अगर हम एयर में है, बाहर है, वी आर नॉट इनटू अ लिक्विड, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है इस प्रेशर डिफरेंस का, जो बॉडी में अपनी फ्लूइड्स और ऑक्सीजन या एयर विच इज प्रेजेंट इन आवर लंग्स एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी, if atmospheric pressure is more, then the force on your body would be more, and depending upon how much more it is, your body can be crushed. ये हो सकता है जैसे आप किसी ऐसी प्रेशराइज्ड सिचुएशन में चले जाएं जहाँ पे प्रेशर बाहर ज़्यादा है। अभी हमने पढ़ा ना कि नॉर्मल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर अपनी बॉडी जो है आराम से झेल सकती है, बट हम आपको किसी ऐसे रूम में, चैम्बर में भेज दें जहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, और ये आप केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे या देखेंगे या नोट करना, कई इक्वेशंस जब आप लिखते हैं वहाँ पे प्रेशर का भी लिखा जाता है, और ज़्यादातर प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है केमिकल रिएक्शंस में। तो यू विल सी देयर आर सर्टेन रिएक्शन वेयर प्रेशर रिक्वायर्ड इज 200 एटमॉस्फेयर, 300 एटमॉस्फेयर। तो ये आप ले लीजिए कि हम 1 एटमॉस्फेयर तक झेल सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रेशर अगर हो जाएगा तो अपनी बॉडी के ऊपर वो क्रशिंग वाला फीलिंग या बॉडी एक ऐसा कुछ फील होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होगा, जैसे वैक्यूम में हो सकता है, माउंटेन्स पे आप जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। नाउ सी हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट। होना तो ये चाहिए था कि जब आप एटमॉस्फेयर में जैसे जा रहे हैं हाइट पे, तो हाइट इंक्रीज कर रही है, बट व्हाट विद हाइट डेंसिटी ऑफ एयर इज आल्सो डिक्रीजिंग। वो प्रेशर किसकी वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद दिस। अगर H इंक्रीज हो रहा है, आप हाइट पे जा रहे हैं, तो ये डेंसिटी जो है ये भी चेंज कर रही है, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज हो जा रही है, और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं ग्रेविटी भी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को मतलब उसी हिसाब से लेना है। इफ वन वेरीज द अदर टू आल्सो वेरीज, दे डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट। तो विद हाइट, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, द प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है पर हमारी बॉडी में फ्लूइड भी उतना ही है, तो वो प्रेशर, बॉडी का अंदर का प्रेशर जो है वो उतना है, सेम ही है जितना पहले था। उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर हाई प्रेशर, बाहर लो प्रेशर, then the fluid, whatever fluid is present at high pressure would start flowing towards low pressure. उसकी वजह से nose bleeding या वो जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब whenever you are flying, ठीक है, and you are boarding a plane, what happens? You must have noticed that जो कैबिन होता है जहाँ पे आपकी सीट्स वगैरह हैं, उसमें एक प्रेशराइज्ड कैबिन्स बनाए जाते हैं, और प्रेशर जो है हाई रखा जाता है, मतलब उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाई इट इज डन सो? बिकॉज एरोप्लेन्स दे हैव टू फ्लाई एट हाई ऑल्टीट्यूड वेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, ठीक है, सो दैट वी डू नॉट फेस प्रॉब्लम। हमारा प्रेशर तो सेम रहेगा बॉडी का, फ्लूइड का, तो वी डोंट नोज ब्लीड और हमारे को प्रॉब्लम ना आए, नोजिया, हेडेक्स वगैरह। तो प्लेन के अंदर प्रेशर एट सी लेवल वाला मेंटेन किया जाता है ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स रहे, ठीक है। जेट लैग्स वगैरह होते हैं व्हेन यू आर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स, like for instance if you're flying to USA, if the flight is 18 hours long or 20 hours long, you feel jet lag। एकदम से जब आप बाहर निकलते करते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि जैसे बॉडी पेन हो रहा है या वैसे हो रहा है, नाउजिया टाइप। तो वो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कंडीशंस होती हैं लोगों को, आपने अक्सर सुना होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, जब बॉडी के अंदर का फ्लूइड का प्रेशर जो है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो।
अब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज करेगा नहीं, वो तो सबके लिए सेम है ना। पर अगर हमारी हार्ट विच इज अ पंपिंग ऑर्गन विल स्टार्ट पंपिंग मोर ब्लड, तो उसकी वजह से फिर फ्लूइड का प्रेशर जो है अंदर बॉडी के बढ़ जाता है और हाई भी। और अगर हार्ट कम ब्लड पंप करे तो लो बीपी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। सो इट ऑल वर्क्स ऑन दीज प्रिंसिपल्स। जैसे हमने बैरोमीटर किया, हल्का सा आपको बता दूं, we can choose any other liquid as well, we can choose even water। और वाटर के केस में हमने देखा है कि अगर आपको वाटर चूज करना है, जैसे ये 76 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ के रुक गया था, वाटर के केस में आप इसको 13 टाइम्स कर दीजिए, इतनी हाइट का हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है। तो हम लिक्विड कोई और चूज कर सकते हैं, पर मर्करी is a good choice, like a thermometer, it's a shiny liquid so we can see, ठीक है। इसकी डेंसिटी हाई होती है जिसकी वजह से इसको ज़्यादा राइज नहीं करना पड़ता, तो हमें छोटा सा अरेंजमेंट बैरोमीटर का बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है वो कम है, ठीक है। सो इट कैन हेल्प अस मेजर मोर एक्यूरेटली। ये इस ट्यूब के साथ जो मर्करी है, when it rises, it does not stick to the walls of the tube. Water stick कर जाता है, तो उसकी वजह से it's not a very good choice। और water थोड़ा volatile भी होता है, वो एकदम से गड़गड़ पानी जो राइज करना शुरू कर देता है, ठीक है। Especially one point to notice, ये कुछ पार्ट इस ट्यूब का होता है जिसको हम टॉर्सलीज वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्सलीज वैक्यूम। वैक्यूम माने नो एयर नथिंग। तो व्हाई इट इज लेफ्ट लाइक दैट? क्योंकि इसकी जगह अगर एयर या वाटर वेपर कुछ भी हुआ, अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं हुआ तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ इट, दैट द स्मॉल पोर्शन अबाउट, ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है ये कितना होता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्सलीज वैक्यूम। So with that, we end the topic and the lesson. We'll see you soon in the doubt class. If you have any doubt, please ask me, and we'll clear that. And we'll start with the question answers soon as well. All right. Take care. Goodbye.